Welcome to the last video related to the agriculture sector of Pakistan. This is our second module of your course issues in Pakistan economy. और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमने बहुत थॉरली डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में. वी हैव डिस्कस्ड द हिस्टोरिकल अकाउंट, द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर over time period. Then we had discussed the green revolution, we had discussed the land reforms, and finally we have reached the point that we are going to discuss some critical issues in the agriculture sector of Pakistan. Before moving towards the issues of agriculture sector, we just need to summarize कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है. We have discussed that agriculture sector has seen a transformation or change over time. So we had discussed two important things in this context. One is what is the process of that change. We have discussed the history and different important economic incidents in the agriculture sector, just to see that what was the process of that change or transformation in agriculture sector. And secondly, the second important area is the nature of change, that if the change occurs, so what kind of change is there. So we have discussed two things. One is the process of change and second is the nature of change. And finally, due to these two areas to be discussed in nature and process, तो हमने ये देखा कि जो change आ गया है agriculture sector में, what are its social and economic consequences over the relations, के social lives पे क्या impact हुआ due to change in the agriculture sector, and secondly economic consequences क्या हैं agriculture transformation के या change in agriculture sector के. So this was the whole story of agriculture sector of Pakistan which we have discussed so far. Now as I told you, we are going to discuss the critical issues. अब issues बहुत diversified हैं agriculture sector के. हम उसमें से कुछ brief issues को discuss करेंगे, कुछ different important areas of agriculture issues discuss करेंगे. इस context में first one is agriculture price policy, which is very important to discuss. Then agriculture credit, issues related to mechanization of agriculture sector of Pakistan, agriculture income tax, which is again very important area to discuss. Then water crisis and the issues related to land reforms. First one is agriculture price policy. अब agriculture price policy has two different dimensions. One is the output price policy, कि agriculture output की जो prices government determine करती है उससे related policies, and secondly input price policies, agriculture input related to like seeds, fertilizers और mechanization tools, machinery. तो इनपुट्स की जो प्राइसेस हैं उनसे रिलेटेड. सो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का एरिया जो है वो इन दोनों साइड्स को कवर करेंगे हम. एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in a sense that a government can regulate or determine, or government can play a very critical role in determining two important economic questions. One is what to produce, कि क्या प्रोड्यूस करना है एग्रीकल्चर आउटपुट में, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है. तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इस सिलसिले में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. यह बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में कि वो जो है वो इसके थ्रू अपनी दो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर हम या उनको रेगुलेट कर सकें. सबसे पहले एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की एक डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन. A good agriculture price policy can play an important role, जैसे आपको पहले भी बताया. Formal definition of agriculture sector or price policy. So agriculture price policy can play or can act as an incentive to the producer to produce certain type of goods in required quantities. So दो चीज़ें जो है वो डिटर्मिन करने में अच्छी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. दैट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द गवर्नमेंट, इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट कैन रेगुलेट टू थिंग्स कि क्या प्रोड्यूस करना है, टाइप ऑफ गुड, एंड सेकेंडली कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है. सो एक अच्छी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एक इंसेंटिव की तरह एक्ट करती है फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द इश्यूज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइस पॉलिसी.
इस सिलसिले में जो मेन इश्यूज़ है वो तो हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम डिफरेंट एरियाज़ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइसेस के इश्यूज़ के ऊपर जो एनालिसिस हुआ, दैट वाज डन इन 1988। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की अपने ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, जिसमें एरियाज़ और इश्यूज़ हाईलाइट किए गए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइस पॉलिसी। उसमें भी हम चंद इम्पॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे। You can have comprehensive reading from any book of agriculture sector of Pakistan or your recommended book most particularly, उसमें से आप पढ़िएगा। First one is the low prices of food grain। एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइस पॉलिसी में नॉर्मली जनरली जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, जिसमें फूड आइटम्स हैं या फूड ग्रेन है, उसकी प्राइसेस लो रखी जाती हैं। उसके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव दो हैं। वन इज़ जनरल पर्सपेक्टिव के लो प्राइसेस पे फूड अवेलेबल हो पॉपुलेशन को, ओके फाइन। बट ये जो टाइम पीरियड था जिसमें लो प्राइसेस डिटरमिन हुई आउटपुट एग्रीकल्चर आउटपुट की, ये वो टाइम था जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस था। सो अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड डिटरमिनिंग द लो फूड ग्रेन प्राइस इज़ टू गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्री, टू प्रोवाइड चीप prices raw material to the industrial sector of Pakistan. So that was first issue in the agriculture output price policy. Export duties heavily जो हैं वो कॉटन की एक्सपोर्ट के ऊपर थी। अब उससे डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली सफ़र हुई। प्रोड्यूसर ने को यहाँ पे भी डीमोटिवेशन है। द मोनोपोली प्रोक्योरमेंट के लिए वीट और राइस की प्राइसेस जो हैं वो फिक्स्ड थी गवर्नमेंट की तरफ से, उससे भी प्रोड्यूसर डिस्करेज हुआ और प्रोड्यूसर नॉर्मली दे गो टू द मर्चेंट टू सेल देयर वीट एंड राइस इंस्टेड टू द गवर्नमेंट कि वो हमें इमीडिएटली जो है उसकी प्राइस रिसीव हो जाएगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो इंटर प्रोविंसेस मूवमेंट है एग्रीकल्चर आउटपुट की, उसके ऊपर टैक्सेस हैं। अब उससे हैवी टैक्सेस या हैवी ड्यूटीज़ के रिज़ल्ट में क्या हुआ कि जिस एरिया में सरप्लस है प्रोडक्ट का, वहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो सफ़र हुई और अल्टीमेटली जो है उसका नुकसान प्रोड्यूसर ऑफ दैट आउटपुट होता है, प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दे गॉट सफ़र्ड फ्रॉम दिस। लो प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल की अगेन लो प्राइसेस जो हैं वो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है फॉर प्रोडक्शन। सो लो प्राइस ऑफ वेजिटेबल की, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की इंपोर्ट बहुत कंफर्टेबली एट लो प्राइसेस जो है वो स्टार्ट हुई या हो रही थी। उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो आपकी डोमेस्टिक जो प्राइसेस हैं वो सफ़र करती हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस सफ़र करने की वजह से आपका जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर का, वो सफ़र करता है। सो ऑल दीज एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइस एनालिसिस इज़ डिस्करेजिंग for the producers of agriculture sector. Now coming to the input prices. Input prices में भी there were heavy subsidies given in 1960s and 70s for its input of the agriculture sector, which includes fertilizers, seeds, pesticides, then machinery, equipment, tube wells. अब अगर आपको याद हो, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में डिटेल से डिस्कस किया था कि ये सारे जो इनपुट्स थे, ये मैकेनाइजेशन है, इसका भी ज़्यादा फ़ायदा जो था वो लार्ज प्रोड्यूसर्स ने उठाया था। ये भी जनरली सारे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। तो आउटपुट प्राइस पॉलिसी से भी आपके जनरली फार्मर्स जो हैं वो डीमोटिवेट हुए और इनपुट प्राइसेस भी हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट बहुत थोड़े जो फार्मर्स हैं वो उठा सके थे। तो अगर हम एक एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को एनालिसिस करने के बाद समराइज़ करें तो एग्रीकल्चर हैज़ सफर्ड अ लॉट फ्रॉम आउटपुट प्राइस पॉलिसीज़ एंड लार्ज फार्मर्स, देयर वर फ्यू फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ द subsidies given to the input prices of the agriculture sector. So these were the main or brief issues to be discussed in agriculture price policy. Then comes agriculture credit, financial support which could be provided to the farmers for better quality and quantity of output. तो उसके भी दो sources हैं, formal sources and informal sources. अब पाकिस्तान में भी अगर हम analysis करें, observe करें इस एरिया को, agriculture credit के एरिया को, तो फॉर्मल सोर्सेज से बेनिफिट
अराउंड 15% जो है फार्मर्स उन्होंने उठाया. रिमेनिंग ऑल द फार्मर्स गो टू द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सारे फार्मर्स जो हैं दे आर नॉट अनेबल टू मीट द ऑल द प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर of getting formal credit or credit from the formal sources. and secondly access नहीं है. तो जो हमारे specialized institutions हैं formal source of credit के एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे भी बेनिफिट जो है वो लार्ज फार्मर्स ही उठाते हैं जनरली. और जो हमारे जनरल फार्मर्स हैं या मिडिल लेवल फार्मर है या लोअर लेवल फार्मर है, दे यूजुअली गो टू द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि उसका प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत फ्लेक्सिबल है, कोलेट्रल बहुत लिटिल है. तो ये दो एरियाज़ जो हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनको भी रीडिफ़ाइन और री-रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि उससे ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो जनरल बेनिफिट उठा सकें. सो फार वी हैव डिस्कस्ड दीज टू इम्पॉर्टेंट एरियाज़, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट. रेस्ट ऑफ द इश्यूज़ विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.